ہے کس کے تخیل کا شہکار اودھ نامہ. معزز ناظرین و سامعین آداب. 23 شوال المکرم مطابق 16 جون 2020 کے اودھ نامہ کے وائس ایڈیشن میں میں ہارون رشید آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آئیے نظر ڈالتے ہیں صفحہ اول کی پہلی سرخی پر جو اس طرح ہے: امت شاہ کی کل جماعتی میٹنگ میں کورونا کے خلاف متحد ہو کر کام کرنے پر اتفاق. خبر کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں پیر کے روز کورونا کے بے قابو صورتحال پر کل جماعتی اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں تمام رہنماؤں نے قومی راجدھانی میں کورونا کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. دہلی بی جے پی کے صدر آدیش گپتا، جو ساؤتھ بلاک میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس میٹنگ کے بعد باہر آئے تھے، کہا کہ اجلاس میں شامل تمام رہنما دہلی کو کورونا سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنے پر متفق تھے. گپتا نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وزیر داخلہ نے اجلاس میں بتایا کہ 20 جون تک دہلی حکومت کووڈ-19 کی روزانہ 18,000 ٹیسٹنگ شروع کرے گی. انہوں نے کہا کہ ڈور ٹو ڈور کورونا ٹیسٹ ہوں گے. صفحے کی دوسری اہم سرخی میں کہا گیا ہے کہ کورونا اکتوبر میں عروج پر ہوگا. ہندوستان میں ابھی نہیں رکنے والا کورونا وائرس کا قہر. خبر کی تفصیل کے مطابق ہندوستان میں جس تیزی کے ساتھ کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں، لوگ بری طرح خوفزدہ ہیں. سبھی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آخر کب تک کورونا کا قہر یوں ہی چلتا رہے گا. اس سلسلے میں ICMR انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کا ایک نیا مطالعہ سامنے آیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کورونا اکتوبر مہینے کے شروع میں اپنے عروج پر ہوگا. گورنر لال جی ٹنڈن کی آپریشن کے بعد حالت نازک ہونے کی خبر بھی صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کی گئی ہے. خبر کے مطابق مدھیہ پردیش کے گورنر لال جی ٹنڈن کی حالت نازک ہو گئی ہے. لکھنؤ کے لال جی ٹنڈن کا علاج لکھنؤ میں میدانتا اسپتال میں چل رہا ہے. آج صبح انہیں سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی. ایسے میں ڈاکٹروں نے انہیں فوراً وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا ہے. لال جی ٹنڈن کو بخار پیشاب کی شکایت تھی. 11 جون کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگی. ایسے میں انہیں راجدھانی کے شہید پت واقع میدانتا اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. آئنسٹائن کی مثال کے ساتھ راہل گاندھی کے مودی کو نشانہ بنائے جانے کی خبر بھی صفحہ اول پر شائع ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے لاک ڈاؤن کے باوجود کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 انفیکشن کے معاملات میں مسلسل اضافے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنایا اور عظیم سائنسداں البرٹ آئنسٹائن کی مثال کے ساتھ ان پر سخت حملہ کیا. واضح رہے کہ راہل گاندھی کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے پر گزشتہ ہفتے سے مودی حکومت پر مسلسل حملے کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں کہ اس حکومت کی نااہلیت اور گھمنڈ کی وجہ سے بحران بڑھ رہا ہے. اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن کے دونوں ملازمین کے پولیس کی قید سے رہا کیے جانے کی خبر صفحہ اول کے ذیلی حصے میں ہے. پاکستان نے ہٹ اینڈ رن کے الزام پر دونوں ملازمین کو گرفتار کیا تھا. پاکستان پولیس نے اب دونوں ملازمین کو رہا کر دیا ہے. مئی میں تھوک کاروبار کی افراط زر کی شرح گھٹ کر 3.21% ہونے کی خبر بھی صفحہ اول کے ذیل میں جلی سرخی کے ساتھ ہے. خبر کے مطابق کورونا کی وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مانگ گھٹنے سے گزشتہ مئی میں تھوک قیمتوں پر مبنی افراط زر کی شرح گھٹ کر 3.21% رہ گئی ہے. تجارت اور صنعت کی مرکزی وزارت نے پیر کو یہاں جاری اعداد و شمار میں بتایا کہ پچھلے کئی مہینوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بازار میں سرگرمیاں سست ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے نہ صرف مانگ میں کمی آئی ہے بلکہ اعداد و شمار کا ذخیرہ بھی رکاوٹ کا شکار ہوا ہے. ناظرین آداب، اودھ نامہ کی صفحہ 2 کی خبروں کے ساتھ میں آفرین جمال آپ کی خدمت میں. صفحے کی پہلی اہم خبر امریکہ سے ہے. پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ فام شخص کا ہوا قتل. تشدد میں ہوا مزید اضافہ، نسل پرستی کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری. معاملہ امریکہ کی جارجیا شہر اٹلانٹا کا ہے، جہاں 27 سالہ رشارڈ بروکس کو جمعے کی رات وینڈی ریسٹورنٹ کے ڈرائیو تھرو میں پولیس نے گولی مار دی، جس کے بعد نیشنل ایسوسی ایشن برائے ایڈوانسمنٹ آف کلرڈ پیپل نے یہ بیان جاری کیا کہ ہم بہت مر چکے ہیں. NAACP امریکہ میں شہری حقوق کی سب سے بڑی تنظیم ہے. واضح ہے کہ گزشتہ ماہ میں ایک پولیس اہلکار نے منیپولس میں جارج فلوئڈ نامی شخص کو گلا دبا کر ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد ملک بھر میں نسل پرستی کے خلاف مہم شروع ہو گئی تھی، جس میں سفید فام امریکیوں نے بھی شرکت کی تھی. جمعے کی رات ہونے والی اس تشدد کے خلاف بھی لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا. فلوئڈ کے قتل کے بعد ایک معروف ہونے والا نعرہ "آئی کانٹ بریتھ" نسل پرستی کے خلاف بین الاقوامی سطح پر پکار بن چکا ہے. اس سلسلے میں اٹلانٹا کے میئر نے اعلان کیا کہ پولیس چیف ایرکا شیلڈز نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ مہلک فورس کا جائز استعمال تھا.
सफ़े की दूसरी जानिब अहम खबर की सुर्खी, चीन में कोरोना की दूसरी लहर शुरू, जिसके चलते कई इलाकों में हुआ लॉकडाउन। चीन में फिर कोरोना का हुआ हमला, जिसकी जद में चीन की राजधानी बीजिंग आई है, जहां पिछले 3 दिन में 36 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के इस हमले को फैलने से रोकने के लिए जंगी सतह पर एहतियाती तदबीरें की जा रही हैं, जिसके चलते बाजारों और रिहायशी इलाकों को बंद कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को आम बताया जा रहा है, क्योंकि इस मरज का खात्मा अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है। सफ़े के दरमियानी हिस्से की अहम खबर इस्लामाबाद पाकिस्तान से है, जहां वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमाओं को मुज़ाकरत की दावत देते हुए कहा कि वो बाइख्तियार लोगों से बामक़सद मुज़ाकरत के लिए तैयार हैं, जिसके जवाब में PTM के रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर ने कहा कि हमें मुज़ाकरत और बातचीत से इनकार नहीं, इख़लाक़ व इख्तियार रखने वाले तमाम लोग जब चाहें हम उनसे मुज़ाकरत के लिए तैयार हैं। परवेज़ खट्टक ने PTM रहनुमा सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ की बात कही और कहा कि हमें आवाम की तालीम, सेहत की बुनियादी सहूलियात से मुताल्लिक़ तरक्की के कामों को इज्तिमाई तौर पर करना चाहिए। जारे सऊदी इत्तेहाद की अल हदीदा पर एक बार फिर गोलाबारी की खबर भी सफ़े पर अहमियत रखती है। IRRB की रिपोर्ट के मुताबिक जारे सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने यमन के मग़रिबी शहर अल हदीदा के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर हमला किया, लेकिन हमले में होने वाली जानी और माली नुकसान की कोई खबर अभी नहीं आई है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ के कल रात तुर्की पहुँचने की खबर भी सफ़े पर मौजूद है। मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ अपनी इस 2 रोज़ा दौरे में तुर्की हुक्काम के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी मसाइल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सफ़े पर एक और अहम खबर काबुल की शहर अफ़ग़ानिस्तान से है, जहाँ लड़ाइयों में मसरूफ़ दोनों फ़रीक़ तालिबान और हुकूमत अमन के मुतालिक़ मुज़ाकरत शुरू करने पर आमादा हो गए हैं, ताकि कई सालों से जारी खून खराबे का कोई सियासी हल ढूंढा जा सके। वाज़ेह है कि इस मुज़ाकरत का एक तवील अरसे से इंतज़ार हो रहा था। जून के आखिर में हुकूमत और तालिबान के दरमियान कतर में इस मुज़ाकरत के इम्कान बताए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने पाकिस्तान की साबिक़ा वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ाम तराशी करने पर अमेरिकी खातून ब्लॉगर और दस्तावेज़ी फिल्म प्रोड्यूसर सिंथिया दी रिची के खिलाफ मुकदमे का दिया हुक्म। नाज़रीन और सामीन, 16 जून के अवधनामा के सफ़ा नंबर 3 पर वज़ीर आला उत्तर प्रदेश का ये बयान सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनलॉक का मतलब नज़्मो ज़ब्त है। खबर के मुताबिक वज़ीर आला ने आज लोक भवन में मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए अनलॉक निज़ाम के दौरान मुकम्मल नज़्मो ज़ब्त के साथ रहना जरूरी है। उन्होंने कोविड-19 के इन्फेक्शन की कड़ी को तोड़ने के लिए मुसलसल चौकसी बरतने पर जोर दिया है। उन्होंने जिला गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत देते हुए कहा कि इन अजला में इलाज और मुआलजे के बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेहतर दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाए, इस सिलसिले में बैकअप को भी तैयार रखा जाए। उन्होंने कहा कि वक्त पर इलाज से शरह अमवात पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि तमाम सनती यूनिटों को सर्वे करके उन यूनिटों में रोजगार की जरूरत का अंदाजा किया जाए। इसी खबर के बाद में शाये एक खबर में बताया गया है कि वज़ीर आला हेल्पलाइन में 79 हुए मुतासिर, हरदोई में 10 और पॉजिटिव मिलने की इत्तला। खबर के मुताबिक वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में वायरस ने दस्तक दे दी है। इसके चलते उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया गया है। राजधानी में दोशंबे को 36 लोगों में वायरस मिला। इसमें 26 वज़ीर आला हेल्पलाइन के मुलाजिमीन, 3 जानकीपुरम, 2 लाल कुआं, 3 LDA कॉलोनी कानपुर रोड, 1 डालीगंज और 1 राजाजीपुरम का मरीज है। वज़ीर आला के खिलाफ टिकटॉक पर गैर मुहज़्ज़बाना तबसरा करने वाले शख्स की गिरफ्तारी की खबर भी इसी खबर से मुंसलिक है, जिसमें बताया गया है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिकटॉक पर गैर मुहज़्ज़बाना तबसरा करने वाले मुलजिम अमित गौतम को सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई की टीम में शामिल साइबर सेल और शहर कोतवाली पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद का बयान भी सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद 14,000 से मुतजाविज हो गई है, इसलिए एहतियात बरतने से इन्फेक्शन पर काबू पाया जा सकता है। खबर के मुताबिक अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि रियासत में 5,064 अफराद जेर इलाज हैं, 8,610 लोग अब तक सेहतयाब हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस वक्त रियासत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मुतासरा अफराद के सेहतयाबी की शरह 10.61% है, जो एक राहत की खबर है।
नायब वजीर आला से मिलकर तलबा ने फीस माफी और प्रमोट किए जाने की रखी मांग। इस सुर्खी के तहत खबर है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के तलबा की एक बड़ी तादाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर दिनेश शर्मा की रिहाइशगाह के सामने धरने पर बैठ गई और अपने मुतालिबात को लेकर मुजाहिरा करना शुरू कर दिया। तलबा का कहना है कि पिछले 3 माह सिर्फ लॉकडाउन में गुजरे हैं। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से तलबा अपने अपने घर चले गए थे, जिसकी वजह से तालीम मुकम्मल नहीं हो सकी। इस मामले में उन्हें इस सेशन में तरक्की दी जाना चाहिए। ये एहतजाज डिप्टी चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह के सामने आधे घंटे तक जारी रहा, जिसकी वजह से हसनगंज पुलिस के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में गवर्नर और वाइस चांसलर से बात करने की यकीन दहानी कराई है। स्कूलों में असातिज़ा के दस्तावेजात की जांच का काम शुरू होने की खबर भी सफा 3 पर है। खबर में कहा गया है कि अनामिका शुक्ला केस के इंकिशाफ के बाद कस्तूरबा गांधी गर्ल स्कूलों में तैनात असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के तालीमी रिकॉर्डों और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक पीर से शुरू हो गई है। पीर के रोज 8 ब्लॉक के कस्तूरबा स्कूल के मुलाजिमीन ने असल दस्तावेज के साथ पहले दिन शिरकत की। महकमे ने उनकी तकर्रुरी के वक्त के दस्तावेज को असल दस्तावेजात के साथ मिलाया, उसके साथ ही असल रिकॉर्ड को भी जमा करा लिया गया है। वजीर आबपाशी का बयान इस सुर्खी के साथ शाये हुआ है, प्रोजेक्ट से मुताल्लिक सभी काम 30 जून तक निपटा लिए जाएं। खबर के मुताबिक सेक्रेटरी आबपाशी व आबी वसाइल अपर्णा यू ने अफसरों को हिदायत दी है कि सैलाब से निपटने के लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ और वजीर जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह के जरिए वक्तन फवक्तन दिए गई हिदायत का सख्ती से तामील कराते हुए सैलाब से कबल सिस्टम को और कारगर और माकूल बनाया जाए। सेक्रेटरी आबपाशी और सदर पैकेट हफ्ता को यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के ऑडिटोरियम में पैक्ड UPWSRP की जायजा मीटिंग कर रही थी। उन्होंने कहा कि आलमी बैंक की मदद से सैलाब से कबल सिस्टम राब्ती नदी और कायम की गई है। आत्मनिर्भर भारत मिशन, सरप्लस फल सब्जियों की मुनासिब मार्केटिंग का बंदोबस्त। इस सुर्खी के तहत खबर है कि नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत रियासत में होने वाली फलों और सब्जियों के सरप्लस पैदावार को कम आमद वाली बाजार में ट्रांसपोर्टिंग के तवस्सुत से भेजने पर कुल लागत का 50% ग्रांट और फल या सब्जी को कोल्ड स्टोरेज में या दीगर किसी वेयर हाउस में स्टोर करने पर 50% के ग्रांट का बंदोबस्त किया गया है। ये स्कीम अभी 6 माह के लिए नाफिज की गई है और जरूरत के मुताबिक इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इन खबरों के अलावा ग्रेटर नोएडा में 2 गिरोहों में तसादुम के नतीजे में निस्फ दर्जन से जायद अफराद के जख्मी होने, बिजली इंजीनियरों का बिजली तरमीमी बिल वापस लेने की अपील करने और पानी का बहरान हल करने के लिए मेंबर असेंबली अमिताभ वाजपेयी के पानी सप्लाई के लिए धरने पर बैठने की खबरें भी सफा 3 पर हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप सभी को कहकशां इरफान का सलाम। मौरख़ 16 जून बमुताबिक 23 शव्वाल मुकर्रम मैं लेकर हाजिर हूँ आपके खिदमत में अवधनामा के सफ़र नंबर 7 की सुर्खियाँ। इसी हवाले से सफ़र नंबर 7 अपना वतन के सरे वरक़ पर पहली सुर्खी कुछ इस तरह रकम है। हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान रोटी बेटी का रिश्ता है। ये अहम जुमला भारत के मरकज़ी वज़ीर दिफा मोहतरम राजनाथ सिंह का है। ये बात राजनाथ सिंह ने पीर के रोज़ उत्तराखंड जनसंवाद और वर्चुअल रैली से खिताब करते हुए कहा कि बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्क कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, लेकिन मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस चैलेंज को कबूल करने पर आमादगी के लिए दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सिर्फ भारत ही नहीं, आलमी इदारे सेहत WHO ने भी कोरोना को रोकने के इक़दामात की तारीफ़ की है। साथ ही उन्होंने नेपाल के साथ ताल्लुकात के बारे में कहा कि हिंदुस्तान और नेपाल का गैर मामूली रिश्ता है। हमारे यहाँ रोटी बेटी के ताल्लुकात हैं और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरहदों पर कितनी तारें लगाई गई हैं, हमारा रिश्ता अटूट रहेगा। सामीन, सफ़े की दूसरी अहम सुर्खी ये है कि कोरोना के मरीजों के लिए रेलवे ने 5231 कोच तैयार किए हैं। नई दिल्ली 15 जून UNI के मुताबिक इंडियन रेलवे कोरोना के मरीजों को क्वारंटाइन करने के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर 5231 कोच तैयार किए हैं, जिनमें 500 कोच तो दिल्ली में तैनात किए जाएंगे। और रेलवे बोर्ड के सदर विनोद कुमार यादव ने आज एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली हुकूमत ने 500 कोचों का मुतालबा किया है, जिनमें 50 कोच शकूर बस्ती स्टेशन पर रखे गए हैं। सामीन, गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज वाज़ेह किया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या NGT को माहौलियात को खराब करने वाले वाक़यात के खिलाफ आज खुद नोटिस लेने का हक है। वाज़ेह है कि कंपनी में गुज़िश्ता मई हुए गैस लीक हादसे में 12 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। इसी खबर के बाई जानिब एक अफसोसनाक खबर भी है। सीनियर IRS अफसर ने खुदकुशी कर ली।
سامعین، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ نئی دہلی 15 جون دارالحکومت کے دوارکا علاقے میں کورونا انفیکشن کے ڈر سے انڈین ریونیو سروس کے ایک سینئر افسر شیوراج سنگھ، جن کی عمر 56 سال تھی، زہریلی چیز پی کر خودکشی کر لی۔ پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ شیوراج سنگھ انکم ٹیکس محکمے میں ایڈیشنل کمشنر کے عہدے پر فائز تھے۔ اپنا وطن کے صفحے پر کورونا معاملے پر حکومت کی ناکامی پر CPIM کا احتجاج بھی درج ہے۔ ملک میں کورونا کے بحران کو حل کرنے میں حکومت کے ناکام ہونے کا الزام لگاتے ہوئے مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی نے منگل کے روز ماسک لگا کر سماجی دوری کے ساتھ احتجاج مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور لوگوں سے اس احتجاجی مظاہرے کو کامیاب بنانے کی اپیل بھی کی ہے۔ CPI بیورو نے اس ملک گیر احتجاج مظاہرہ کا فیصلہ حکومت کی موجودہ پالیسیوں کے خلاف کیا ہے، جس کی وجہ سے کورونا میں بھیانک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ صفحے کے نچلے حصے میں دہلی فاؤنڈیشن کی طرف سے گلزار دہلوی کو خراج عقیدت پیش کی گئی ہے۔ پنڈت آنند موہن جوشی عرف گلزار دہلوی اپنا جسمانی سفر طے کر کے ہماری تہذیبی تاریخ میں ایک داستان رقم کی ہے، جسے جب بھی پڑھا اور سنا جائے گا تو آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہوئی ہماری مشترکہ گنگا جمنی تہذیب کا تمام تر حسن و جمال مجسم ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اپنا وطن کی آخری سرخی، مدھیہ پردیش کانگریس کے بڑے لیڈر دگ وجے سنگھ کے خلاف FIR درج ہونے کی خبر ہے۔ خبر کے مطابق مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان سے جڑے ویڈیو میں چھیڑخانی کر کے اسے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے الزام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں کی شکایت پر سابق وزیر اعلیٰ دگ وجے سنگھ اور 11 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ معزز سامعین، اودھنامہ کے صفحہ آخر کی پہلی خبر میں کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹر پروفیسر کوثر عثمان کا بیان ہے۔ خبر کے مطابق پروفیسر کوثر عثمان نے کووڈ-19 وہم اور حقائق کے موضوع پر ایک خصوصی لیکچر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن شاخ لکھنؤ کے زیر اہتمام ویبنار کے ذریعے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ماسک ایسے پہننا چاہیے کہ آپ کی ناک، منہ، داڑھی کا حصہ ڈھکا ہو۔ ماسک فیتا یا لاسٹک پکڑ کر ہی نکالنا چاہیے، ماسک کو چھونا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر کوثر عثمان نے کہا کہ کورونا وائرس تاریخ انسانی کا ایسا کربناک واقعہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کی لہریں تھم گئی، فضا سہم گئی اور زندگی کی نبض کی رفتار رک گئی، انسانیت لاچار ہو گئی۔ اس وائرس نے نظام زندگی کو بدل ڈالا، معاشرت کے اطوار و قدریں بدل ڈالی۔ کورونا وائرس ایک آسمانی آفت ہے، خدائی قہر ہے۔ آج چائنا کی سرحدوں سے لے کر امریکہ کے شہروں تک سناٹا ہے، گلیاں سنسان، سڑکیں خاموش، لوگ گھروں میں قید ہیں، تجارتی کاروبار چوپٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ، جس میں 2 میٹر کی دوری، انتہائی ضروری ہے۔ لیکچر کے بعد پروفیسر کوثر عثمان نے ناظرین کے سوالات کے تشفی بخش جواب بھی دیے۔ قابل ذکر ہے کہ ویبینار کا آغاز انور حبیب علوی کے تلاوت کلام پاک سے ہوا، نظامت جاوید صدیقی نے کی، جبکہ کلمات تشکر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن شاخ لکھنؤ کے صدر طارق صدیقی نے ادا کیے۔ صفحے کی بائیں جانب اکھلیش یادو کا بیان ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ BJP اقتدار میں بدعنوانی گھریلو صنعت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کی صورتحال وزیر اعلیٰ کے قابو سے باہر ہو چکی ہے، پولیس سسٹم میں انتشار کی صورتحال بن چکی ہے، تو سیکریٹریٹ بدعنوانی کا مرکز بن کر رہ گیا ہے۔ اسی صفحے پر مولانا کلب جواد کا بیان بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیعہ وقف بورڈ کے لیے کسی ایڈمنسٹریٹو افسر کو تعینات کیا جائے۔ اطلاع کے مطابق مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا جواد کی قیادت میں ایک وفد آج وزیر محسن رضا سے ملاقات کی۔ اس دوران وفد نے شیعہ وقف بورڈ اور شیعہ سماج کے مفاد پر چرچا کرتے ہوئے بورڈ کے جلد تشکیل یا بورڈ کے مستقل طور سے چلانے کے لیے کسی ایڈمنسٹریٹو افسر کو تعینات کرنے کی مانگ بھی کی۔ سینئر کانگریسی لیڈر پرمود تیواری نے کورونا بیماری کے دوران پیٹرول ڈیزل کی مسلسل بڑھتی قیمتوں کو بدقسمتی بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے یہ فکر کا موضوع ہے۔ اپنے ایک اور بیان میں پرمود تیواری نے سابق ممبر اسمبلی جے نارائن شرما کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے انتقال کی خبر سے میں بہت غمگین ہوں۔ سیاست میں وہ میرے بڑے بھائی کی طرح ایک ایسے گیان پوجیہ تھے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ناظرین و سامعین، اودھنامہ میں شائع سیاسی، ادبی اور متفرق مضامین کے تعارف اور ان کی تلخیص کے ساتھ میں ہارون رشید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ ادارتی صفحے پر پہلا مضمون سینئر صحافی عبید اللہ ناصر کا ہے، جس کا عنوان ہے ہماری خارجہ پالیسی کو کیا ہوا، نیپال جیسا ملک بھی آنکھ دکھا رہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہندوستان اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک طور سے آزادی کے بعد سے اب تک عالمی برادری خاص کر اپنے پڑوسیوں کے درمیان اتنا الگ تھلگ اور اتنا گھرا ہوا کبھی نہیں رہا جس نہج پر مودی جی نے اسے پہنچا دیا ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ نیپال جیسے ملک نے بھی نہ صرف ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دیا ہے بلکہ سرحد پر فائرنگ کر کے ہمارے 4 لوگوں کو زخمی اور 1 کو ہلاک کر دیا ہے۔
उधर नेपाली पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान के 3 इलाकों को अपने मुल्क में शामिल करने की करारदाद मंजूर करके हिंदुस्तान की इलाकाई सालिमियत को भी खुला चैलेंज दिया है। दूसरा मजमून नवाब अली अख्तर का बउनवान क्या अब लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि जैसे जैसे मुल्क में जांच में इजाफा हो रहा है मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ये तादाद चंद हजार में नहीं बल्कि लाखों में हो गई है। हुकूमत सिर्फ अवाम के लिए हिदायत जारी करके बरी जिम्मा नहीं हो सकती, उसको मुनज़्ज़म अंदाज में बेदारी लाने की जरूरत है। अवाम को यह एहसास दिलाने की जरूरत है कि कोरोना के साथ जिंदा रहने के लिए कुछ शराइत हो सकती हैं, कुछ एहतियात लाजिमी हो गई हैं। इस एहतियात को इख्तियार करते हुए हम अपने आप को, अपने अफराद खानदान को और फिर सारे समाज को इस वायरस का शिकार होने से बचा सकते हैं। बेदारी के मामले में हुकूमत ने अब तक कोई खास तवज्जो नहीं दी है। इदारती सफ़े पर ही राजदीप सरदेसाई का मजमून कोविड-19 से नए हिंदुस्तान का जन्म के उन्वान से शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि बड़े पैमाने पर तहरीक देने वाले इमदादी प्रोग्राम पेश करे जो इस बात को यकीनी बनाए कि रास्त नकद रकम की इमदाद बेशतर कमजोर अफराद तक पहुंचे। इस्लाही इक़दामात मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाए, सिर्फ अच्छी तरह नेटवर्क रखने वाली सनतों के लिए नहीं। जहां हम एक खुद निसार हिंदुस्तान तामीर करें, सिर्फ पुरकशिश नारे काफी नहीं है और न ये हकीकत की अक्कासी करते हैं। वो लिखते हैं कि हमारे कानून साज अफराद की वफादारी बैरूनी ममालिक के साथ है, या फिर वो तर्क वतन करके बैरूनी ममालिक की इस्तेमाल की हुई दस्ती घड़ियां फख्र के साथ इस्तेमाल करते हैं। वो डिजाइनर चश्मे पहनते हैं और पुरतायुश मोटरों में घूमते हैं। ये भी उनके तर्ज जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। ये हकीकी आजादी की जन्नत नहीं है जहां हमारा मुल्क बेदार होना चाहता है। सामीन, अदबी सफ़े पर पहला मजमून तख्लीक व तनकीद और हमारे फिक्री रवैये के उन्वान से है, जिसमें मजमून निगार जलील आली लिखते हैं, मैं समझता हूं कि हमारी तख्लीकात में हमारी फिक्री तहजीबी रिवायत अपनी जुमला जिहतों के साथ पूरी तरह जिंदा और सलामत है। अगर हम अपने फिक्री रवैयों की तश्कील में खुद अपनी मरकजी तख्लीकी वारदात की मानवियत को पेश नजर रखें और इजहार ख्याल में उससे मुखलिस रहें तो इधर उधर भटकने से बच सकते हैं। एक और जगह लिखते हैं कि फिर हद से बढ़ी हुई नजरिया पसंदी भी अदबी तख्लीकात पर मुहाकमा कारी के ऐसे ऐसे नमूने सामने लाती है जो इफरात व तफरीत का शाहकार होते हैं। ऐसी तहरीरों में जिन मुंदरजात का हवाला दिया जाता है वो तख्लीकार की तख्लीकात में मौजूद तो होते हैं मगर उसके पूरे काम में उनकी हैसियत एक जुज़्व की होती है। दूसरा मजमून कहकशां इरफान का है, जिसका उन्वान है चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। आप लिखती है कि आज हर कौम हमसे लाख दर्जे बेहतर है। यह सच कड़वा जरूर है मगर आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि तमाम कौमें अपनी नस्लों की आबियारी अपने मजहबी अकायद और कानून के मुताबिक करती हैं, मगर मुसलमान बेपेंदे के लोटे या थाली के बैगन की तरह इधर उधर लुढ़कता रहता है। अगर हम सच्चे मुसलमान बन जाए तो आज भी दुनिया की कोई कौम हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। मोहम्मद हुसैन साहिल मुंबई का मजमून मुराद साहिल लफ्जों के नक्काश भी अदबी सफ़े के ज़ैली हिस्से में नुमाया है, जिसमें मुराद साहिल की शायरी के बारे में मजमून निगार लिखते हैं कि मुराद साहिल कोकन का वो नौजवान शायर है जो न तेज हवाओं से डरता है न तूफानी मौजों से खौफजदा होता है। कोकन के सर सब्ज व शादाब वादियों में रहकर अपने कीमती अशार की तख्लीक करता है। वो आप बीती को जग बीती, गमे जाना को गमे दौरा में ढाल कर अपने अशार पेश करने के हुनर से बखूबी वाकिफ है। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर पहला मजमून मौलाना अब्दुल हफीज इस्लामी का है, जिसका उन्वान है अल्लाह की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान। इस मजमून में आप लिखते हैं कि मुस्लिम उन आजमाइशों की घड़ियों में पूरे उतरते हैं जो अपनी जिंदगी को बंदगी रब में गुजारने का अज़्म कर चुके हैं, जिन्होंने अपने मकसद हयात को अच्छी तरह और शऊर के साथ समझ लिया है और जिनका अपना नसबुल ऐन खुदा वाहिद की इताअत हो और सिर्फ उसी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल चुके हैं। इसी तरह के मोमिनीन के लिए अल्लाह की रजा व खुशनुदी है, दुनियावी व उखरवी कामयाबी है, हुसूल जन्नत की जमानत और जहन्नम से दूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से कुर्बत का वाहिद और बेहतरीन वसीला है और जिस शख्स को अल्लाह जल्ल जलालहू का कुर्ब हासिल हो गया हो उसे कमाल दर्जे की नेमत नसीब हो गई। इसी दफे पर दूसरा मजमून हाफिज मीर इब्राहिम सलफी का बउनवान कोरोना वायरस के खौफनाक नताइज शाये हुआ है, जिसमें मजमून निगार लिखते हैं कि माली और मुआशी बुहरान के अलावा इस लॉकडाउन में जहनी अमराज भी हद से तजावुज कर गए हैं। एक ही जगह बैठने से गोया इंसान की जिंदगी एक पिंजरे में कैद होकर रह गई। अल्लाह की यह वसी जमीन भी कैद खाने में तब्दील होकर रह गई। लॉकडाउन में ऐसे हादिसे भी सामने आए कि घर का मुहाफिज ही दरिंदगी पर उतर आया और अपने ही खानदान की इज्जत लूटने पर आमादा हो गया। तल्ख हकीकत यह है कि हम में से वायरस की जद में तो सिर्फ थोड़े ही लोग आ गए, लेकिन नफ्सियाती एतबार से हम सब इससे मुतासिर हो चुके हैं।
तीसरा मजमून अजमत अली का तन्हाई और खुशी के उन्वान से है, जिसमें साहिब मजमून लिखते हैं, हकीकत यही है कि अगर इंसान डिप्रेशन का शिकार हो तो उसे कम करने की जानिब मुकम्मल तवज्जो दे। खत्म करने में तो बहुत से मुश्किलात हैं, लेकिन उसको कम कर देना बहरहाल आसान है। जो बातें इल्म नफ्सियात के माहिरीन ने बताई हैं और इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं, उन मुश्तरक बात का खुलासा यह है कि इंसान ऐसे मकाम पर चला जाए जहां उसे एहसास शादमानी हो, इबादत गाहों में चला जाए जहां खामोशी से दुनिया को बाहर छोड़कर उस आखिरी उम्मीद से लौ लगाकर कुछ बातें कह ले जो सबका हमदम व मददगार है। वो ऐसा राजदार है जिससे किसी किस्म का कोई घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा हम, पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।